ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک پنجاب میں تلونڈی نامی گاؤں، جسے آج کل ننکانہ صاحب کہتے ہیں، میں 1469 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مہتا کالو پٹواری تھے اور والدہ ترپا، دونوں ہی نیک اور پارسا ہندو تھے۔ گرو نانک کی پیدائش پر خاندان کے پروہت ہردیال نے ان کی پیشانی سے جب نور پھوٹتا دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور نانک کی جنم پتری دیکھ کر کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس کی تعریف کے گیت گائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ پرندے اور جنگلی جانور اس کا نام لے کر اپنی حیوانیت کو تیاگ دیں گے۔ گرو نانک نے جب ہوش سنبھالا تو اسے ایک ہندو استاد کے پاس حساب اور مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا۔ انہوں نے قریبی جنگل میں جا کر سادھوؤں اور مہاتماؤں کی صحبت اختیار کی۔ گرو نانک حق کے متلاشی تھے، لیکن ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کبھی انہیں بھینس چرانے کے لیے بھیج دیا جاتا اور کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا، اور آخر کار کہا گیا کہ اور کچھ نہیں تو کھیتی باڑی کا کام ہی کر لو، جس پر نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دل کو ہل چلانے والا بنا کر نیک کام کاشت کرنا چاہتا ہوں، اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندان ہی کیا تمام دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ جب نانک کے اتوار سے ان کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو انہوں نے نانک کی شادی کر دی کہ شاید اسی طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ نانک جی کا دل جب کہیں نہ لگا تو گھر والوں نے انہیں سلطان پور کے نواب دولت خان کے گودام میں رسد کا حساب کتاب رکھنے پر نوکری دلوا دی۔ جب وہ رسد تولتے تو 13 کی گنتی پر پہنچتے اور 13 پر میں 13 کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخود ہو جایا کرتے۔ نانک دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں بانٹنے لگے۔ جب نواب صاحب سے شکایت کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہے ہیں تو انہوں نے گودام کا حساب کتاب دوبارہ لگوایا، لیکن تمام اجناس پوری نکلی۔ ایک دن نانک قریبی ندی میں نہانے نکلے اور 3 دن تک پانی کے اندر غائب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی نانک کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے انہیں ایک پیالہ عنایت کیا اور فرمایا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پلاؤ۔ جو تمہارا نام لے گا اسے شعور بیدار ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک انوکھا نعرہ تھا، نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان۔ شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا جو مسلمانوں کی حکومت میں اور ہندوؤں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے۔ قاضی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ نانک، تم کہتے ہو کوئی یہاں نہ کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے نہ کوئی مسلمان، تو پھر تم کون ہو؟ نانک نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے، مگر جب میں مسلمان بھی نہیں ہوں، میں 5 عناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور نانک میرا نام ہے۔ قاضی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہوں، مگر ہم تو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر۔ تم کیا جانو ان میں کیا راز پوشیدہ ہے اور ان کے صلہ میں ہم بخشے جائیں گے؟ جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، سچ کی، دوسری حق حلال کی کمائی کی، تیسری خدا کے فضل و کرم کی، چوتھی نیت اور ایمانداری کی، اور 5ویں خدا کی حقیقی یاد کی۔ ان سے عظیم تر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، قاضی نے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھ، تمہیں خود ہی فرق محسوس ہو جائے گا۔ نانک نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔
काजी जब नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज ख़त्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे हैं तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने जवाब दिया कि नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसने एक बच्चा दिया था। काजी साहब को अंदेशा था कि बच्चा कहीं कुएं में ना गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहाँ से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, लेकिन नानक ने कहा कि अब वो उसके यहाँ मुलाजमत नहीं करेंगे। जिसके यहाँ मुलाजमत करेंगे वो तमाम कायनात का वाली है, तमाम कायनात को पालने वाला है और तमाम कायनात इसके आगे हाथ बांध कर खड़ी है। ये कहकर नानक ने मुर्दाने को कहा, जो कि उनका मुरीद हुआ करता था और रुबाब बजाया करता था, कि मेरे साथ आओ, और जंगल की तरफ चले गए। नानक जी जंगलों और आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मोजज़े दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज़ हरिद्वार पहुँचे तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरक़ की तरफ उछाल रहे थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि मरने वाले बुज़ुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी ज़िंदगी ठंडी और आसूदा रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। ये देखकर लोग हंसने लगे कि क्या कभी किसी ने पानी मगरब की तरफ भी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरब की तरफ पंजाब में हैं, मैं उनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे कि इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा कि आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुँच सकता है, तो मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज क्यों नहीं कर सकता? कहते हैं जब बाबर हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ तो उसने पंजाब को तहते किया, तो इमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें बाबा गुरु नानक और मर्दाना भी शामिल थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज़ में कलमा हक कहते और बखुशी अपना काम करते। जब बाबर को यह खबर मिली कि एक फ़कीर अपनी बेगार भुगतते हुए खुशी और एहसान मंदी के साथ नाचता है, तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फ़कीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबर गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुँचाया है, मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ। मैंने लोधी ख़ानदान के मज़ालम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया है। बाबा गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी राया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊँगा। नाज़रीन इकराम, बाबा गुरु नानक ने कहा कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहाँ से चल दिए। गुरु नानक के मक्का, मदीना और बगदाद का सफ़र भी किया। उस सफ़र में भी मर्दाना उनके साथ था। बगदाद से शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और मुर्शद व मौलाई हज़रत मुराद के मज़ारों पर भी चले गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गुरु नानक ने 40 दिन तक चिल्ला किया। इसके बाद बाबा वली कंधारी हसन अब्दाल के मज़ार पर चिल्ला किया। जब तारीख़ की कई किताबों में बाबा गुरु नानक के हज करने का जिक्र भी मिलता है। नाज़रीन इकराम, सिख मज़हब की तारीख़ से ये अमर वाज़ह है कि बाबा गुरु नानक ने मुसलमानों से ताल्लुक़ पैदा करने के लिए एक मुसलमान औरत से शादी भी की थी जिसका नाम बीबी खानम था, लेकिन सिख तारीख़ में इसे माता मजहूत के नाम से मौसूम किया गया है। बाबा गुरु नानक बाबा फरीद गंज शकर की तालीमात से बहुत मुतासर थे और बाबा गुरु नानक के मजमुआ कलाम का नाम
ग्रंथ साहब है, जो हज़रत इब्राहीम फरीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शायरी से लिबरेज है। बाज़ का ख्याल है कि ये भी हज़रत बाबा फरीद चिश्ती गंज शक्कर का कलाम है, जिसके हर शेर के आखिर में फरीद तखल्लस अय्यां है। नाज़रीन इकराम, बाबा गुरु नानक का विरद हमेशा हो रहा। आप पर एक वक्त ऐसा भी आया कि आप आलम इस्तगराक में चले गए, जिसकी वजह से नमाज रोज़े की पाबंदी ना कर सके, जिसकी वजह से आपको हजामत बनवाने का होश ना रहा। चनाचे आपके पैरोकारों ने भी नमाज रोज़े की पाबंदी को ज़रूरी ना समझा और हजामत को भी बिल्कुल तर्क कर दिया। चनाचे यहाँ से हिंदुओं से अलग थलग एक नए फिरके सिखों की बुनियाद पड़ गई। सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भी गए थे। बाद अज़ां बगदाद शरीफ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी हाज़री दी। बगदाद शरीफ आपको एक चोगा मिला था, जिस पर कलमा तैयबा, कुरानी आयात, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नसर, आयतुल कुर्सी और अस्माउल हुस्ना दर्ज हैं। नाज़रीन इकराम, बाबा गुरु नानक तक इस्लामी इबादात, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कलमा तैयबा और आज़ान की हकानियत और अहमियत से बखूबी आगाह थे। अल्लाह ताला की वहदानियत और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल एतमाद रखते थे। गुरु नानक ने जब तबलीग का सफ़र ख़त्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे, जो आजकल तहसील शकरगढ़ में दरबार साहब के नाम से मौसूम किया जाता है। इस कस्बा को आबाद करने के लिए एक मुसलमान रईस ने काफ़ी ज़मीन भेंट की थी। गुरुजी ने जब ये कस्बा आबाद किया था तो अपने घर से मुतसिल एक मस्जिद भी तमीर करवाई और इसमें नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम भी मुकर्रर किया था। बाबा गुरु नानक की वफ़ात पर मुसलमानों ने ये बात भी गुरुजी के मुसलमान होने के तौर पर सबूत के तौर पर पेश की थी, जहाँ हज़ारों लोग उनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी भाई लहना को सौंप दी और उसके बाद उन्होंने अपने ख़ानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हम्दो सना बयान की और फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए और उसी हालत में उनका विसाल हुआ, जिसके बाद इनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि इनको हम दफनाएंगे, हिंदू मुरीद ये कहते थे कि हम अपनी रस्म व रवाज के मुताबिक बाबा गुरु नानक का अंतिम संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्फिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल मुरझा जाएं वो चला जाए और जिसके फूल ना मुरझाएं वो गुरु नानक का वारिस बने। सुबह जब लोगों ने देखा तो दोनों फरीकैन के फूल तरोताज़ा थे और महक रहे थे। जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। बाज़ मौरखीन लिखते हैं कि रात को मुसलमान बाबा गुरु नानक का जिस्म ले गए थे और ले जाकर दफन कर दिया था। कई तारीखी कुतब में लिखा है कि बाबा गुरु नानक मुसलमानों के हाथों दफन हुए। बाबा गुरु नानक की तालीमात सिखों की मुतबर्रक किताब गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद हैं। यहाँ बाबा गुरु नानक की 974 मंजूम नज़में मौजूद हैं जो पढ़ी जाती हैं। नाज़रीन इकराम, एक मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा बाबा गुरु नानक ने अपने मुरीद से कहा कि मज़लूम करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गम मनाया करो। मुरीद हैरत से पूछने लगा, गुरुजी वो तो मुसलमानों के पेशवा है। गुरु नानक नज़रें उठाकर कहने लगे, मैं तुम्हारा कौन हूँ? वो कहने लगा कि आप हमारे गुरु हैं। बाबा गुरु नानक ने कहा, मैं जो तुम्हें कहूँगा तुम करोगे? वो कहने लगा, हाँ बाबा करूँगा।
बाबा गुरु नानक ने कहा, जाओ जाकर अपनी बहन से शादी कर लो। वो गुस्से में कहने लगा, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, अपनी बहन से शादी क्यों करूं? जब उसका गज़ब बढ़ने लगा तो बाबा गुरु नानक मुस्कुरा कर कहने लगे कि तुम्हारे इसी ज़मीर की आवाज़ को ही हुसैन कहते हैं। याद रखना, आज जो इंसान अपनी बहन से शादी को गुनाह समझता है, ये तमीज़ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सिखाई हुई है। हलाल व हराम में फ़र्क इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी से मालूम होता है। ऐ मेरे मुरीद, ये बात कभी ना भूलना कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़कत मुसलमानों के नहीं बल्कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंसानियत के पेशवा हैं, और जब तक इंसानियत कायम रहेगी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गम ताब बाकी रहेगा।